Good morning. My name is Dr. Apoor Mehra. I am an orthopedic surgeon, and I welcome all of you to this BTR. Right. So, just to tell you a few things uh, before Zainab and Ravi comes and they speak to you. Uh, the campus will open at 7 a.m. in the morning, right, and will be up till possibly 9 p.m. Okay. So you are most welcome to use the areas. This is the auditorium, right? This is a quiet zone. Then you have the desktops, and if you are a part of the complete package, you can sit there. The desktops have been allotted to you. Ravi has made a system. He'll explain how he has done it. Then you have the ground floor. There's an auditorium there. That is for certain programs on those days it will not be available. Otherwise, you can sit and study there. Again, a quiet zone. Then you have the entire reception area where you can put your chairs and study anytime. Then around outside there's an area where you can study anytime. Then you have one silent room next to the basement computer room we will show you. Again, you can study there. So there are different zones to study. The rule is very simple. In the study areas, you're not allowed to get food items or anything else. Bahar niche cafeteria, you can go and book your meals and have the meals there. Early morning, anyone who comes, the first 100 students, every day they can grab a fruit as a gift here. That's from us. So you can pick it up and eat it. And as you leave till the end, again, the last 100 who stay can take a fruit. That's going to be there on the counter, which is kept for you because my grandmother and my grandfather, after whose name this place is, right, Vidya and Jeevan, they always used to say कि अगर पैसा है तो फल खाओ, अगर समय है तो सो जाओ. So on this principle, they always used to say. And then my childhood did not have so many fruits because of the reason which is unknown, but I wish that all of you come early and grab a fruit. Certain things, please welcome Dr. Zainab Vora. So, मैं अपनी बातें बाद में करूँगा. इससे पहले हम चाहेंगे कि जैनब हमें डिकोड करेगी कौन कौन से 4 प्रोग्राम हैं, कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है यहाँ पे. एंड यू नो दिस टाइम, दीज मंथ्स, इसमें आपकी लाइफ में 2 फेज़ आएंगे और आपको वो लड़ना बहुत ज़रूरी है. मैं आपको आज से बताया था. फेज़ नंबर 1 आएगा जब INI-CT का एग्ज़ाम होगा. आप सबका वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, राइट? ताली बजा रहे. आप सबकी उस एग्ज़ाम में रैंक आएगी. बट मैं अभी से बता रहा हूँ, एग्ज़ाम दे के अगले दिन पढ़ने आ जाना. बिकॉज एंट्रेंस की पढ़ाई रिज़ल्ट आने पे ख़त्म नहीं होती. एंट्रेंस की पढ़ाई अपनी मर्ज़ी की सीट मिलने पे ख़त्म होती है, राइट? ज़ैनब एक होप है जिसने लोगों को INI-CT के लिए पढ़ना सिखाया. इससे पहले लोग मानते थे INI-CT एक एक्सीडेंट है. हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट होना ही नहीं था. लोगों को समझाया गया कि ये सीटें अलग लोगों के लिए बनी हुई हैं. तो शी वॉक्ड इन एंड सेड, देखो जिनका सिलेक्शन होता है उनकी भी 2 आँखें होती हैं, 1 नाक होती है. वो भी हमारी तरह ही हार्ड मास के प्राणी हैं. और उसने हर एरिया से लोगों को यहाँ आना सिखाया कि हम एम्स, जिपमर, PGI की सीट्स ग्रैब कर सकते हैं. तो आप लोगों ने सबसे पहले अगर यहाँ आना है तो रोज़ ये मान के चलना है कि हमें जान लगानी है. डोंट हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट एग्ज़ाम. द नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ जो INI-CT एग्ज़ाम. और हम वहाँ पे सीट लेंगे. जितने बच्चे यहाँ पर हैं वो सारी सीट ग्रैब कर लेंगे, राइट? फिर आएगा आपका रिज़ल्ट. रिज़ल्ट्स में यहाँ पे रैंक 1 2 3 4 5 6 सब बटनी शुरू हो जाएंगी. कुछ की थोड़ी पीछे भी आएगी. आपको बोलना सीखना पड़ेगा कि मेरी रैंक आएगी, है ना? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा दैट यू हैव टू गिव दिस फाइट. सो जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, उसकी काउंसलिंग होगी, उसके एकदम 1 महीने के अंदर आपका नीट का एग्ज़ाम. वहाँ पर आपको दिखाना है कि आप लोग क्या हो. क्योंकि
आप कहीं से भी सीट ले सकते हो INI-CT और नीट से, बट ये नहीं होना चाहिए कि INI-CT में एक अच्छी रैंक आ गई, उससे वो सीट मिस हो गई जो चाहिए थी और नीट का रिजल्ट ख़राब कर लिया। सो आपको 2 फाइट्स मारनी होंगी यहाँ पे। पहले प्रिपरेशन टिल INI-CT एंड देन फ्रॉम INI-CT टू नीट। सो ज़ैनब हैज़ ऑलरेडी मेड अ शेड्यूल, थिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्लान। इमीडिएटली अगर आप देखें तो उसने आपके लिए नीट से पहले DTs रखे हैं, उससे पहले टेस्ट रखे हैं, BTRs को शेड्यूल किया हुआ है, राइट? बट यू हैव टू गो थ्रू दिस। सेकेंड पॉइंट, आपको ना इन 4 महीने में एक दूसरे का साथ देना है। व्हेन आई वाज इन पोस्ट ग्रेजुएशन, सो मेरे को मेरे सीनियर्स ने बोला कि जब भी किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हो जरूर पूछा करो हाउ आर यू। सो आप एक दूसरे से ना हाउ आर यू जरूर पूछना यहाँ पे, बिकॉज आप एक दूसरे की फैमिली हो अगले 4 महीने, एंड यू नेवर शुड क्रॉस अनदर ह्यूमन बीइंग। ओवरलुक मत करना। यू नेवर नो हु नीड्स यू मोर देन यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कितनी भी सीट उखाड़ लो, कितना भी नाम कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, फाइनली तो रहोगे दुनिया में ही, आपस में। सो यहाँ पर एक दूसरे को ग्रीट जरूर करना, एक दूसरे से बात ज़रूर करना, राइट? इतने इनह्यूमन मत होना कि अगर कोई दिखे दुखी है तो तुम क्रॉस कर जाओ। यू नेवर नो, यू नो, किसी के कंधे पे हाथ रखना या किसी से हाथ मिलाने में कोई हार्म नहीं होता। ऐसा ना हो कि सबके कंधों पे हाथ रखे जा रहे हो ज़बरदस्ती और गले मिले जा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा भी मत हो जाना फ्रेंड, है ना? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। सिमिलरली अगर किसी के आर्टिकल्स मिले तो हम उसको सबमिट कर दें, राइट? थर्ड, ये साइलेंट जोन्स हैं, यहाँ पे फ़ोन पे पीछे बात ना करें। अगर आपको फ़ोन आता है बाहर जाइए, देयर लॉट ऑफ स्पेस टू टॉक। तो दीज आर फ्यू थिंग्स एंड आई एम श्योर रवि एक पूरी लिस्ट तैयार करके आ रहा है अभी क्या क्या आपको बताएगा। So before that, I think Zainab should welcome all of you to the boot camp. First of all, the next 3-4 months are very, very crucial for us. I believe all of you would have read stuff at least once in your life. 19 subjects you have been oriented to at least once. Now it's the time to consolidate everything. No matter where you are at in your preparation, you have to now take this cycle of test and discussion very, very seriously, that this is the last time that I'm going to be getting the time to do every subject in detail, because after that it's just going to be a brush through. So that's how you have to take it कि अभी जो सर्जरी और तो पढ़ेंगे वो आखिरी बार पढ़ेंगे इस डिटेल में, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा टू वर्क ऑन वीकनेसेस, टू डू सर्वेलेंस, फाइंड आउट टॉपिक्स जो मुझको वर्क अपॉन करना है, उनको सॉल्व करना है, डाउट सॉल्व करने हैं. दिस इज the final time that we are going to get a chance to do that. After that, right now what you have to do is find out stuff that I want to look at one more time. This is your filter round. Filter round means इसमें से 50% कंटेंट आप फिर से देख ही नहीं पाओगे. So वो कंटेंट उस हिसाब से देखना है that what if I don't look at it again, let me just understand and finish it off. So this is your 50% filtering round, ताकि next 1 month में आप उसको सब कुछ consolidate कर पाओ, the remaining 50% that you have to relook. So while you are studying now, the intent has to be to filter 50% stuff which I can just understand. That's what I keep saying. If you know the why, you don't have to remember the what. तो 50% का why या फिर concept करके ही उसको finish कर देना है right now. That has to be the intent, right? The sequence that you should follow, I'll get to it. I think I should get to it right now. कोई मेरा iPad connect कर देगा. So we'll get to it now, and I'll tell you how you should utilize, your days. How many of you are just test and discussion plan? Few of you. And how many of you are complete package? You're going to be staying here. Okay. So I'll tell you for both. The strategy for preparation remains the same for everybody. A few pointers for those who are going to be staying here. I'll just mention towards the end, right? Okay, connected? ठीक है, जब तक हम ढूंढते हैं आई टेल यू फ्यू पॉइंट्स नाउ. सो द आइडिया इज एक चेकलिस्ट दूंगी आपको कि क्या क्या कवर करता है स्टेप वाइज, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप, इवन इफ इट डजंट वर्क तो कोई बात नहीं. सो स्टेप 1 जो आपको करना है इज, सी देयर आर 2 मेन थिंग्स जो आपका फाउंडेशन बनेंगे. वन इज गोइंग टू बी BTR एंड वन इज गोइंग टू बी PYQs. Right? They are your roadmap. They are not everything that you have to do. They are your roadmap for stuff कि इतना हमें
सिलेबस का आइडिया दे देगा कि ये टॉपिक्स हैं जो हमें मास्टर करने हैं, राइट? इफ वी कैन डू इट फ्रॉम BTR एंड PYQs इटसेल्फ, वंडरफुल. इफ वी फाइंड दैट नहीं, इसमें और क्वेश्चंस का स्कोप है, या फिर इसमें ऐसे PYQs है विच आई एम नॉट एबल टू आंसर, or there is a tendency that they are asking more and more questions from this topic, we find those topics and now we go into their detail, right? Because it's not possible to do all 19 subjects in detail now. I think that by now you have realized कि सब कुछ तो नहीं कर सकते, तो क्या करने पे हमारा टाइम डिवोट करना है ये आपको सीखना है. That is the whole learning point, that what do I devote my time on, because टाइम इज द लिमिटिंग फैक्टर, कंटेंट इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर. कंटेंट की कोई कमी नहीं है ना, हम सब जगह से पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स हैं, टाइम नहीं है और दिमाग नहीं है उतना, राइट? सो 2 things आर द लिमिटिंग फैक्टर, ब्रेन स्पेस एंड टाइम. So that's what we have to now play upon. We have to find our weaknesses, we have to find our strengths, right? तो strength को strong रखना है, weaknesses पे काम करना है. So whatever are your weak areas from different subjects, that's what we have to go in detail of, okay? And then we find important subjects, जिसमें से सबसे ज़्यादा questions आएंगे. I think you know what are the important subjects. So we have surgery, you have medicine, you have obs-gynae, you have PSM, pharma, physio. Physio becomes very important for AIIMS, INICT, right? So ये 6 सब्जेक्ट है, एंड फिजियो इज रिलेटिवली वीकर फॉर मोस्ट पीपल. सो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू कि ये 6 सब्जेक्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे. बाकी सब्जेक्ट्स में BTR प्लस PYQs करा, उसको मास्टर किया, एंड देन उसमें से वीक टॉपिक्स उठाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑर्थो की बात करें, फीमर में से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, हिप से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नाउ डू, इज टू हैव अ क्लियर आइडिया कि मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. We'll first do lamp lighting, and then I'll properly sit down and tell you all of the steps for 15-20 minutes, so that we are on the same page, and you are all very eager to write something. Ma'am, हम pen paper लेके बैठे हैं, लिखवाओ जल्दी. So I'll do that. Before that, I would like to request some students. First row वाले सबसे पहले आए, please come. Just kidding. आ जाओ please. So come. Anybody who wants to come on the stage for lamp lighting. बेटा ये सारे लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं, आपको जब बुलाओगे यहाँ पे समझ आएगा कि कितने करोड़ों का सामान बचाएंगे. आज सारे कम से ज़्यादा आप लोग दो छोटी छोटी कहानियाँ हैं. पहली सच है, दूसरी कहानी है, राइट? सो आई बिलोंग टू ग्वालियर एंड आई बीन born and brought up in that city in Madhya Pradesh, and when I was age 6, that's what I remember. Before that I don't remember anything. My dad used to take me to the market there every day, and that market is called as Bada. Bada is a big market there if you belong to that place. And I was very fond of balloons. मुझे बड़े पसंद थे balloons. Before I finally became one, so मुझे बड़ा शौक था. एंड इन दैट मार्केट एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी वो बलून वाला जो बलून बेचता था. एंड ही यूज्ड टू सेल 2 kinds ऑफ बलून्स, एक हार्ट शेप्ड रेड कलर्ड बलून और एक फिश शेप्ड ब्लू कलर्ड बलून. और मेरे को लगता था कि पापा मुझे दिला दो, यू नीड टू गेट मी दिस. सो डैड वुड ऑलवेज से कि बेटा ये बहुत कॉस्टली है. बट 6 साल के बच्चे को ना कॉस्टली अफोर्डेबिलिटी समझ नहीं आता. तो दे वर 6 rupees a piece, 12 rupees a day. ये रोज़ की कहानी थी. बट हमारा सरनेम सेम था, पापा मना करते थे और मैं जिद करता था कि मैं लूँगा.
तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, हाथ पकड़ता है, नहीं मानते तो फिर हाथ छोड़ के भागना शुरू कर देता है, फिर नहीं मानते तो फिर मिट्टी में रोल करना शुरू कर देता है, फिर नहीं मानते तो हमारे ऐसा बच्चा कपड़े उतार के फेंक देता है। तुम भी गए, तुम्हारी इज्जत भी गई, मार्केट में नीलाम हो गई, राइट। फिर बलून वाले की साइकिल से टंग जाता है, फिर बलून को हाथ मारता है। तो हर चीज़ करता था। 10-15 मिनट की लड़ाई के बाद when I used to go back, my dad used to hold my clothes. I was mud clad. मेरे राइट हैंड में फिश शेप्ड ब्लू कलर्ड बलून होता था और मेरे लेफ्ट हैंड में हार्ट शेप रेड कलर बलून होता था। I used to walk on the street like a king. मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था लोग मेरे बारे में क्या सोचते थे, राइट। जब मैं घर जाता था तो मेरी मम्मी मुझे साफ करती थी कपड़े वपड़े से, पर मैं हाथ नहीं खोलता था, बिकॉज हाउ कुड आई लेट गो व्हाट आई हैव जस्ट वन। फिर हम लोग वी यूज्ड टू स्टे इन वन रूम एंड बेड पे दादा दादी सोचते थे और हम लोग सब ज़मीन में सोते थे। आई बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, राइट। पैसा कम था, प्यार बहुत था। तो आप जब बड़े होंगे आपको समझ आएगा, आपको ना अच्छी लाइफ जीने के लिए ना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता, आपको अच्छे लोग चाहिए होते हैं। बिकॉज यू आर अ मीन ऑफ 5 इंडिविजुअल्स यू टॉक टू द मोस्ट। मेक श्योर आपके 5 लोग जिनसे आप बात करते हैं वो ठीक होने चाहिए। उनमें से 2 आपके माँ बाप होने ज़रूरी है, अगर आपकी किस्मत है ये तो, राइट। सबकी किस्मत नहीं होती, बट अगर है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 तो टिक होने चाहिए टक तक। उसके अलावा 3 ढूंढ लो, बहुत है, राइट। सो दादा दादी पापा मम्मी, सिंपल था, अपने को टेंशन थी नहीं। एंड आई एम द ओनली सन, आई एम द ओनली किड, सो सारी एनर्जी सारा ज्ञान मुझे ही बटाया था। जब रात को सोता था ज़मीन में तो ऊपर बलून दिखते थे, बड़ा अच्छा लगता था, राइट। सो जाता था, सुबह उठता है, दादी फॉर द टीचर, तो शी यूज्ड टू आस्क मी कैसा रहा। मैंने कहा आपके बेटे की ऐसी की तैसी कर दी मैंने कल मार्केट में। So she told me this when I was 6, right? That as you will grow in life, your fight for the balloons should be 100%. Balloons will keep on changing the shape. It might become a cricket match you wish to win for your school or college, a tournament, a medical seat, a girl you wish to marry, a car you wish to own, a book you wish to write, a place you wish to build, a BTR you want to own, whatever it is. But अगर आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए और आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कपड़े हैं कि नहीं हैं, अगर आप मिट्टी में अपने आप को डालने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं, तो आपके बाप में भी दम नहीं है कि वो आपको रोक सके। दिस इज़ व्हाट मैटर्स। आसान कभी भी नहीं होगा। आपको लगता है कि ज़ैनब ने BTR बनाया आसान है, आपको उसके पैर के छाले कहाँ दिखते हैं, आपको उसकी पीठ कहाँ दिखती है, किस तरह से उसने बनाया है सब कुछ, कैसे वो आती है ज़ारा को छोड़ के, कैसे वो हर जगह जाती है पढ़ाने। आपको लगता है कि इट्स नॉट ईजी, होना भी नहीं चाहिए ना। इफ़ इट वॉज ईजी एवरीबडी विल बी ज़ैनब बोरा। इट इज़ सपोज टू बी डिफिकल्ट एंड दैट्स वाई ये टेस्ट होता है। तो इसमें आती है हमारी 2 इंपॉर्टेंट बातें, जिसकी वजह से आज ये जगह जो है ना, ये BTR है, दिस प्लेस विच इज़ बूट कैंप। पिछली बार दीक्षा करके लड़की के मुंह से निकल गया बून कैंप। तो ये एक वरदान है। क्यों है पता है आपको? बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। रीज़न नंबर 1, ज़ैनब हर स्टूडेंट को ज़ारा समझती है। दैट्स रीज़न नंबर 1, राइट। वो हर स्टूडेंट में अपनी बेटी को समझती है और वो जान लगाती है। स्टोरी नंबर 2, आपके पास ये किताबें हैं, छोटी कॉपी मिली है आपको आज सुबह। उसके पहले पेज पे लिखना आपके बलून्स क्या हैं, डिस्क्राइब करना। पिंक, ब्लू, क्या करना चाहते हो, किस चीज़ के लिए यहाँ आए हो। आप अपने घर से दूर आए हो, राइट। आपकी एक जंग है ये, क्या लड़ने आए हो, क्या हासिल करना है, उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। स्टोरी नंबर 2, एक बहुत बड़े संत होते हैं, उनके बारे में फेमस होता है कि जब भी वो डांस करते हैं बारिश होती है। तो सारी दुनिया उनको देखने आती है कि ऐसा क्या बंदा है यार, डांस करता है बारिश हो जाती है, राइट। ठीक है जी। तो सारे दुनिया के संत कहते हैं वी विल कम्पीट अगेंस्ट हिम, हम भी डांस करेंगे, बारिश होगी। सारे दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, राइट। USA का बंदा चढ़ता है, डांस करता है, कुछ बारिश नहीं होती। अलग अलग देश के लोग आके करते हैं, फाइनली किसी के भी करने पे बारिश नहीं होती। तो जिनके बारे में फेमस होता है वो आते हैं, डांस करते हैं। आधा घंटा बीतता है, बारिश नहीं होती। 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बारिश होती नहीं है। 4.5 घंटे होते हैं, एकदम से बारिश होती है बहुत तेज़। तो सारे रिपोर्टर्स पूछते हैं ऐसा आपने क्या किया जो बारिश हो गई। उन्होंने बोला सोच का फ़र्क है। बाकी सब ने बोला हम नाचेंगे तो बारिश होगी, मैंने सोचा जब तक बारिश नहीं होगी मैं नाचता रहूँगा।
राइट? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सपना क्या है। हर एक कोने में लोग सपना लेके बैठे होते हैं। फर्क इससे पड़ता है उस सपने के लिए आप कितना त्यागने को तैयार हैं, सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, कितना आपके मन में निश्चय है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। आप में से कितनों को ये समझ आता है कि जितना आपको अपहिल जाना है उतनी रोड नैरो होती जाएगी। आप में से कितनों को ये पता है कि रास्ते में बहुत सारे बोल्डर्स आएंगे, पत्थर आएंगे, हमें आगे निकलना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप में से कितने को पता है कि हमारे को अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है। हमारे पास अनलिमिटेड टैलेंट हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकती है, बट टाइम लिमिटेड है। और हम अपने टाइम को कितना यूटिलाइज करें उस सपने की तरफ। जिस समय आप एक बात सुन रहे हैं बैठ के, तो भी इंडिया में 2000 बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे। एंड में लड़ाई आपकी उनसे होगी। तो इसीलिए आपको अपने हर दिन को बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।